ناظرین، آج سے 4.5 ارب سال قبل دو قدیم سیارے آپس میں ٹکرائے اور مل کر اس سیارے کو جنم دیا جس پر آج آپ اور ہم رہتے ہیں، یعنی زمین۔ ان دو سیاروں پروٹو ارتھ اور تھیبیا کے اس ملاپ کے دوران ایک چٹان الگ ہو کر ہمارا چاند بن گئی۔ کائنات کی اس اتھاہ گہرائی اور تاریکی میں ہمارا قریب ترین ہمسایہ چاند ہے، مگر چاند ہماری زمین پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، سائنسدان اس راز کو آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل چیلنج یہ ہے کہ دیو مالائی کہانیوں کو سچائی سے الگ کر کے یہ جانا جائے کہ چاند کا ہماری زمین پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چاند کے زمین پر پڑنے والے دلچسپ اثرات کے بارے میں تفصیلات شیئر کریں گے، تو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، زمین پر چاند کا جو اثر سب سے واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے وہ جوار بھاٹا ہے، یعنی سمندری لہروں کا چڑھنا اور اترنا۔ زمین دن میں ایک مرتبہ اپنے ہی محور پر گھومتی ہے اور اس دوران چاند کی کشش زمین کے قریب ترین حصے پر موجود سمندر کے پانی کو اپنی جانب کھینچتی ہے، جس سے زمین کی سطح پر ایک طرح کا ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کے گھومنے کے باعث پیدا ہونے والی قوت سینٹریفیوگل فورس، جو کسی چیز کو مرکز سے دور دھکیلتی ہے، سمندر کے پانی کو دوسری جانب سے بھی اٹھاتی ہے۔ چنانچہ یہ ابھار زمین کے دوسری طرف بھی پیدا ہوتا ہے اور زمین ان دونوں ابھاروں کے درمیان گھومتی ہے۔ اس کے باعث دن میں 2 مرتبہ ہائی ٹائیڈ یا جوار یعنی اونچی لہریں اور 2 مرتبہ لو ٹائیڈ یا بھاٹا یعنی کم سطح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر 18 سال کے دوران چاند کا مدار بھی زمین کے خط استوا یعنی ایکویٹر کی نسبت 5 ڈگری اوپر یا 5 ڈگری نیچے جاتا ہے۔ اس سائیکل کو سب سے پہلے سن 1728 میں ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تھا اور اسے لونر نوڈل سائیکل کہا جاتا ہے۔ جب چاند کا مدار زمین کے ایکویٹر سے دور جانے لگتا ہے، جوار بھاٹا کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، اور جب یہ ایکویٹر سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے تو جوار بھاٹا کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اب امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سطح سمندر بڑھنے کے اثرات اس لونر نوڈل سائیکل کے ساتھ مل کر سن 2030 تک جوار بھاٹا کے باعث آنے والے سیلابوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ کر سکتے ہیں۔ ناسا کے ماہرین جائزہ لے رہے ہیں سطح سمندر کیسے قدرتی اور انسانی عوامل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا ساحلی علاقوں کی آبادیوں پر کیا اثر ہوگا۔ بلند لہروں سے پیدا ہونے والے سیلاب ساحلی آبادیوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پانی کی سطح بڑھنے سے معاشی کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ساحل کے قریب واقع علاقوں میں کاشتکاری بھی ممکن نہیں رہتی۔ اگر چاند ان فلڈز کی ایک بڑی وجہ ہے اور اسی لونر نوڈل سائیکل کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات کی وجہ سے ساحلی آبادیاں فلڈ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہر دہائی کے ساتھ سیلابوں کی شدت میں 4 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ لونر نوڈل سائیکل دنیا بھر میں ہر جگہ اثر انداز ہوتا ہے اور سمندری سطح بھی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم دنیا بھر میں بلند لہروں کے باعث پیدا ہونے والے سیلابوں کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہوتا دیکھیں گے۔ چاند کے اس لونر نوڈل سائیکل کے باعث انسانوں کے لیے کئی ایک مشکلات پیدا ہوں گی۔ اہم ساحلی علاقوں میں پائے جانے والی جنگلی حیات کے وجود کے لیے یہ ایک خطرہ بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اس سے مچھر جیسا چھوٹا جانور بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جب یہ نوڈل سائیکل اپنے عروج پر ہوتا ہے تو اونچی لہریں زمین میں کافی اندر تک موجود مچھروں کی آبادیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اس دوران اونچی لہروں سے سب سے زیادہ سیلاب پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کل فش لاتے ہیں۔ کل فش نمکین اور تازہ پانی میں پائی جانے والی مچھلیاں ہوتی ہیں اور ان کے ایک گروہ میں کئی 100 مچھلیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ مچھلیاں مچھروں کی ان آبادیوں کو ختم یا کم کر دیتی ہیں جو ابھی انڈے، لاروے یا پیوپا کی شکل میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ انہیں نشو نما پا کر پانی سے باہر اڑنے کا موقع نہیں مل پاتا، اور اس سے صرف مچھر ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کی بہتات سے کئی دیگر جانداروں کے لیے خوراک دستیاب ہوتی ہے۔ نمکین دلدلوں میں بڑے سبزی خور نہیں ہوتے، مگر ان کی جگہ جھینگے،
केकड़े, टिड्डे और दीगर कीड़े मौजूद होते हैं और ये सब जानदार समंदरी परिंदों और मछलियों के लिए खुराक का बड़ा जरिया होते हैं। समंदर की सतह में इजाफे और लूनर नूडल साइकिल का अरूज मिलकर नमकीन दलदलों को डुबो सकते हैं और जब नमकीन दलदलों में रहने वाले ये जानदार मर जाएंगे तो इन पर मुनहसर समंदरी परिंदे, मछलियाँ और दीगर अनवा को भी नुकसान पहुँचेगा। इनमें इंसान भी शामिल हैं कि नमकीन दलदलें आलमी मईशत में भरपूर किरदार अदा करती हैं। इनमें तरह तरह की समंदरी हयात पाई जाती है। माहीगीरी में पकड़े जाने वाली तमाम अनवा का 75% होती हैं। इसके अलावा नमकीन दलदलें बेपनाह माहौलियाती अहमियत की हामिल हैं। ये जमीन पर मौजूद किसी भी दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले में ज्यादा कार्बन जज़ब कर सकती हैं, जबकि इनके मुकाबले में ताज़ा पानी वाले दलदली इलाके इन नमकीन दलदली इलाकों की बनिस्बत 10 गुना ज्यादा कार्बन जज़ब करती हैं और इसकी एक वजह इनकी बहुतात है। जब चांद के इस चक्कर और समुद्री सतह में इजाफे के बायस सैलाबों में इजाफा होगा तो मीठे दलदली इलाके भी जबरदस्त तब्दीली से गुजर सकते हैं। ताज़ा पानी की साहिली दलदलें एक पूरे दिन के दौरान लहरों की ज्यादा तब्दीलियों से गुजरती हैं और इनमें नमकीन दलदलों की मुकाबले में ज्यादा हयात पाई जाती है। इनके मुताबिक इनमें से कई अनवा अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं। पौधे खुराक की इस कड़ी में सबसे ऊपर होते हैं और जब वो खुद को ताज़ा पानी के पौधों से बदल कर नमकीन पानी बर्दाश्त करने वाले पौधों में तब्दील होने लगते हैं तो इन पर मुनहसर जानदार मसलन परिंदे, खुश्की पर पाए जाने वाले कीड़े वगैरह भी मुतासिर होने लगते हैं। ताज़ा पानी की अनवा खारे पानी में इजाफे और ताज़ा पानी में रहने के लिए बहाव में मजीद ऊपर जाने से बहुत ज्यादा मुतासिर होती हैं। मीठी साहिली दलदलों में खारापन सतह समंदर में इजाफे के साथ साथ बढ़ता जाएगा और सैलाब जितने ज्यादा आएंगे मीठी दलदलें खारे पानी की उतनी ही ज्यादा जद में आएगी। जवार भाटा के बगैर दुनिया का मौसमी निजाम बहुत मुख्तलिफ होता। जवार भाटा की वजह से ही समंदरी बहाव चलता है जो गर्म और ठंडा पानी पूरी दुनिया में घुमाता है। गर्म समंदरी बहाव गर्म और मरतूब मौसम लाता है जबकि ठंडा समंदरी बहाव ठंडा और खुश्क मौसम लाता है। लूनर नोडल साइकिल के बायस जमीन पर मौसम पैदा करने वाला एक बहुत ही अहम अमल भी मुतासिर हो सकता है। आम तौर पर इक्वेटर पर तेज हवाएं गर्म सतही पानी को मगरिब की जानिब धकेलती हैं जिससे ये बरआज़म जनूबी अमेरिका से इंडोनेशिया की जानिब जाता है और इसकी जगह ठंडा गहरा पानी ऊपर की जानिब उठता है। एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स या तिजारती हवाएं मामूल से ज्यादा तेज होती हैं और गर्म पानी को एशिया की जानिब ज्यादा धकेलती हैं। वो ठंडा पानी जो बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका के साहिलों पर मौजूद होता है वो तेजी से शुमाल की जानिब जाने लगता है। इसका नतीजा ये निकलता है जमीन के जनूबी हिस्सों में सर्दियाँ निस्बतन गर्म होने लगती हैं जबकि शुमाल में मामूल से ज्यादा ठंडी होने लगती हैं। एल नीनो और ला नीना के अवामिल मजमूई तौर पर उस मौसमी साइकिल का हिस्सा है जिसे एल नीनो सदरन ओसिलेशन कहा जाता है। सदरन ओसिलेशन का मतलब खते इस्तिवा पर बहरुल काहिल में सतह समंदर पर हवा के दबाव में तब्दीली है। एल नीनो और ला नीना का एक दूसरे में तब्दील होने पर चांद की कशिश शकल से पैदा होने वाली एक जेर सतही समंदरी लहर भी असरअंदाज होती है। चांद के 18 साल के लूनर नोडल साइकिल को देखकर एल नीनो के बारे में पेशगोई की जा सकती है। लूनर नोडल साइकिल सतह समंदर के दर्जा हरारत पर भी असरअंदाज होता है। चांद की कशिश जवार भाटा के साथ सतह समंदर की बालाई तहों के आपस में मिलने पर असरअंदाज होती है। ऐसा खास तौर पर शुमाली बहरुल काहिल में होता है जहाँ लूनर नोडल साइकिल आइंदा दहाइयों में यकीनी तौर पर बेपनाह तब्दीलियां लाएगा। वहीं अगर मुख्तसर अरसे की बात करें तो चांद जमीन पर ऐसे असरात का सबब बनता है जिनके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है। अहम चांद के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये कुतबी दर्जा हरारत और आर्कटिक खित्ते की बर्फ के फैलाव में कमी और ज्यादती पर असरअंदाज होता है, मगर यहाँ चांद का असर उसके 18 साल के साइकिल की वजह से नहीं बल्कि इसके माहाना साइकिल की वजह से होता है। सैटेलाइट से की जाने वाली पैमाइश से मालूम हुआ है कि कुतबैन मुकम्मल चांद के दौरान 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म होते हैं। इसके अलावा चांद की कशिश से पैदा होने वाली कुव्वत बर्फ की गहरी चादरों को तोड़ती है और समंदरों में गर्मी के बहाव में तब्दीली लाती है जिससे बहरे आर्कटिक में बर्फ की मिकदार भी बदलती रहती है। चांद समंदर की सतह और गहराई दोनों में ही बहाव और लहरें पैदा करता है और ये बहाव और लहरें गर्म पानी के मिक्स होने या दबाव डालने वाली हरकत की वजह से समंदरी बर्फ को
पिघला सकते हैं या तोड़ सकते हैं। बर्फ इससे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और यूं इसका पिघलना ज्यादा आसान हो जाता है। मगर सिर्फ समंदर की बर्फ और पानी ही ज्वार भाटा से मुतासिर नहीं होती, बल्कि चांद की कशिश का असर खुश्की और फिजा पर भी होता है। जमीन में ज्वार भाटा भी समंदर की तरह ही होता है। जमीन की साख्त भी समंदर की तरह ही तब्दील होती है। ताहम इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इससे आतिशफशानी सरगर्मी और जलजले पैदा होते हैं। इस तरह फिजा पर होने वाले असर के बायस तवानाई अलाई फिजा से निचली जानिब मुंतकिल होती है और फिजा के दबाव में तब्दीली आती है। चांद के बायस फिजा की दबाव में तब्दीली का पता सबसे पहले सन 1847 में लगाया गया था। चांद की कशिश की वजह से जमीन की फिजा भी समंदर की तरह उभार और तब्दीलियां पैदा होती हैं। फिजा के दबाव में तब्दीली का ताल्लुक बुलंद दर्जा हरारत से है, जिसका मतलब ये हुआ कि हवा के मालिक्यूल अपने अंदर बुखारात की सूरत में ज्यादा नमी समा सकते हैं, जिससे जमीन पर नमी और नतीजतन बारिश के इम्कान में कमी वाक़ होती है। चुनांचे फिजा के दबाव में कमी की वजह से सर्द और खुश्क मौसम पैदा होता है, जबकि ज्यादा दबाव पुरसकून और खुशगवार मौसम को जन्म देता है। मगर फिजा में तब्दीली की वजह से बारिश पर चांद का असर सूरज की गर्मी के बायस पैदा होने वाले असर से कम होता है। चांद की कशिश से बारिशों की मिकदार सिर्फ 1% तक ही मुतासिर होती है। जब हमारा सूरज और चांद एक साथ खींच रहे हों तो ये 6 घंटे पहले या बाद के मुकाबले में कुछ ज्यादा बारिश पैदा करता है। चुनांचे चांद की कशिश से बारिश की मिकदार पर नहीं, बल्कि सिर्फ बारिश के वक्त पर फर्क पड़ता है। चांद का असर जमीन पर कभी कम तो कभी ज्यादा होता है, मगर इसका जमीन पर जिंदगी के वजूद में अहम किरदार है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये चांद ही है जिसके बायस जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई है। जमीन जब अपने महवर पर घूम रही होती है तो चांद की कशिश इसे मुतवाजन रखती है, जिसकी बायस हमें एक मुस्तहकम आबो हवा मुयस्सर आती है। इसकी अदम मौजूदगी में जमीन परेशान कुन हद तक डगमगाती रहती और मौसम, दिन और रातें सब निहायत मुख्तलिफ दिखाई देते। मगर जिन लहरों ने मुमकिना तौर पर जमीन पर जिंदगी को जन्म दिया, वो चांद को हमसे दूर धकेल रही हैं और हर साल चांद जमीन पर पैदा होने वाली लहरों के बायस हमसे 4 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है। जमीन चांद के मदार के मुकाबले में अपने महवर पर ज्यादा जल्दी घूम जाती है, इसलिए चांद की कशिश से पैदा होने वाला लहरों का उभार चांद को जमीन की तरफ ज्यादा शिद्दत से खींचता है और चांद की इस शिद्दत की वजह से ये अपने मदार से थोड़ा हट जाता है और यूं इसका मदार बड़ा होता जा रहा है। अहम चांद अभी अगले कुछ बिलियन सालों तक हमारे साथ ही रहेगा, मगर जब ये दूर होगा हो सकता है तब तक जमीन पर कोई जानदार बाकी ही ना हो या उसका दूर होना ही क़यामत का आगाज होगा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।